Hello students, let's continue from where we left last time. So in this part, the first question is परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो फ्री स्पेस आपको बताना है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितना है। तो पैक्ड होता है उसमें 68, ठीक है, 68% उसकी पैकिंग एफिशिएंसी है। तो व्हाट इज लेफ्ट आउट ऑफ 100, दैट इज 32%। सो 32% इज द आंसर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Then 27th question is an element Y forms CCP lattice and elements X occupies two-thirds of the tetrahedral void. So we have to find the formula. अब आपके पास X है और Y है। जो Y है वो CCP लेटिस बना रहा है और जो X है उसने 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई किया है। CCP लेटिस का मतलब कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर n होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके 2n हो गए, ठीक है। और 2n में से टोटल नहीं, बस 2/3 ऑफ द वॉइड्स आर ऑक्युपाइड, सो दिस गिव्स यू 4/3n of x and n for y. So उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर जो आएगा that will come out to be x के 4 atoms and y के 3 atoms. So A is the correct option for this. Next question is, which of the following statement is not correct? You have to find out the wrong statement. So crystalline solids are isotropic. No, crystalline solids are not isotropic. They are anisotropic in nature. So this statement is not correct. Second is, the number of carbon atoms in unit cell is 8. Yes, this is correct. Number of Bravais letters is 14 and fraction occupied by atoms in primitive cell is 0.48. So even this option is correct. So you incorrect. So you have two incorrect options in this question. A is crystalline solids are isotropic, which is not. It is anisotropic. And the option says fraction occupied by atoms in primitive cell is 0.48, which is also not correct. Then comes in crystal structure, NaCl, the arrangement of chloride ions is, so the arrangement of chloride ions in NaCl is FCC type. So A is the correct option. So the question is, the tetrahedral voids formed by the Cl negative ions in CCP arrangement of rock salt structure are, so these voids are actually vacant. They are not occupied. The tetrahedral voids are not occupied. So B will be the correct answer, that these voids remain vacant, unoccupied. Then next question is, the edge length of a unit cell NaCl is 600 picometer and you have to calculate density. So as you know, formula of density is equal to Z into M upon Na into a cube. So putting the values, we have it all. Z is 4 because it is Z for NaCl crystal will be 4 formula units, and this is 58.5 molar mass. Avogadro number is 6.022 10 raised to power 23 and a cube. So this is 600 picometers. So 600, and if I convert it into centimeter, this will be like this. So this you have to solve, and after solving it, you'll get it as 1.79 grams per centimeter cube, and the correct answer will be A. Next is, zinc oxide is white when cold but yellow when hot because it develops. Well, this zinc oxide is originally white, but when it is heated, it gives off Zn 2 positive ions and 2 electrons, and oxygen is evolved in the form of O2. So half O2 you're going to get.
So this goes off, and these Zn2 positive ions, they occupy the interstitial sites, and these two electrons absorb light and gives off color, which is yellow color. So the defect which they are going to show is metal excess defect, because these Zn2 positive ions go to the interstitial sites. So as a result, number of metallic ions increases in the crystal. So this is metal excess defect. फिर है alkali metal halides show this defect. Which kind of defect alkali metal halides show? So they show Schottky defect, because Frenkel defect में जो alkali metal है वो स्लाइड करके इंटरस्टिशियल साइट्स में नहीं जा पाता, क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा होता है, तो फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं वो शो कर पाता है। तो शॉर्टकी डिफेक्ट में उसका जो कैटायन और एनायन का साइज होता है वो सिमिलर सा होता है, तो वो इजीली स्लाइड कर जाता है। फिर सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सिलिकॉन कार्बाइड किस तरह का सॉलिड है? दे आर वास्ट, इज इट मॉलिक्यूलर सॉलिड, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, कोवलेंट सॉलिड और आयनिक सॉलिड? So silicon carbide is an example of covalent solid. So C is the correct answer. Then which species cannot occupy lattice site? कौन सी species lattice sites पे नहीं मौजूद हो सकती? So the answer is electron cannot be present on the lattice site. So B is the correct option, electron. Then the next is the electrical conductivity of quartz glass is the electrical conductivity. क्वार्ट्स ग्लास की हर डायरेक्शन में सेम होती है, क्योंकि वो होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि उसमें डेफिनेट अरेंजमेंट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम इन एवरी डायरेक्शन. Then is the ratio of the number of atoms present in face-centered cubic or body-centered cubic and simple cubic are. So in case of face-centered cubic, number of atoms is 4, and body-centered cubic number of atom is 2, and for simple cube it is 1. So the ratio becomes 4:2:1. Then next question है कि what fraction of any corner actually belong to particular unit? किसी corner की contribution कितनी रहती है? तो जैसे जब भी आप क्यूब ड्रॉ करते हैं, हर कॉर्नर की जो कंट्रीब्यूशन है उस क्रिस्टल के लिए, दैट इज जस्ट द 1/8 पार्ट. 1/8 पार्ट उसका क्यूब के अंदर होता है, बाकी सारा बाहर होता है, तो 1/8 उसकी कंट्रीब्यूशन है. Then comes, what is the number of octahedral voids per atom present in cubic closed packed structure? So किसी भी क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. तो इसके हिसाब से अगर आपके पास किसी भी क्यूब में क्यूबिक क्लोज पैक है, अगर उसके पास 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो आपके पास 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे और 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे. सो इसमें आपसे पूछा गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे उसमें 4. सो द क्वेश्चन इज द क्रिस्टल ऑफ nickel oxide, जिसमें nickel है 0.98 and to that ratio oxygen is 1. It contains nickel 2 positive ion as well as 3 positive ions. So the crystal contains nickel 2 positive and 3 positive ions. So we have to find out the fraction of existing निकल 2 पॉजिटिव आयंस. जैसे कि आपको पता है कि जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल होती है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. तो निकल की क्वांटिटी कम होने की वजह से Na2 पॉजिटिव की क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन चार्ज को इक्वल करने के लिए हम उसमें Na3 पॉजिटिव डालते हैं. तो हमें पता करना है कि टोटल फ्रैक्शन Na2 पॉजिटिव आयंस की कितनी है. सो इसके लिए जैसे कि फॉर्मूला हमारे पास है
0.98 and oxygen to that is 1.00. So the ratio of nickel is to oxygen will be 98 is to 100. So if there are 100 atoms of oxygen, then 98 atoms of nickel will be there. So suppose कीजिए कि nickel 2 positive ions जो हैं that is X. So क्या रेशो रहेगी उसमें निकल 3 पॉजिटिव आयन कितना होगा 98 माइनस एक्स और निकल का जो चार्ज है जितना पॉजिटिव चार्ज निकल पे होगा दैट विल बी इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज होता है तो अगर इनको इक्वेट किया जाए निकल को और ऑक्सीजन को तो हमारे पास आएगा 3 into 98 minus x plus 2 into x. This gives you 2 into 100, right? जिससे हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करके आ जाएगा 294 minus 3x plus 2x is equal to 200 or let's say x will come out to be 94. Now this is not the end. You're not getting answer here only. आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है निकल 2 पॉजिटिव आयन की और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको एटम्स ऑफ निकल 2 पॉजिटिव को डिवाइड करना होगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ निकल ठीक है तो इससे आपको मिलेगा 94 अपॉन 98 इंटू 100 करके 96% या फिर अगर आपको डेसिमल में लिखना है तो दिस विल बी इक्वल टू 0.96 so A will be the correct option for this. Now next is among the following compounds which is most likely to show both Frankel and Schottky defect. कौन सी ऐसी क्रिस्टल है जो दोनों डिफेक्ट शो कर सकती है दोनों डिफेक्ट शो करने के लिए जो केपेबल है दैट इज AgBr ठीक है AgBr जो है वो दोनों डिफेक्ट शो कर सकती है फ्रैंकल भी और शॉर्टकी डिफेक्ट भी देन कम्स मैच द फॉलोइंग जिसमें है वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट तो आपको मैच करना है कौन किसके साथ मैच हो रहा है सो अगर आप ध्यान से देखोगे जो वैकेंसी डिफेक्ट है that is shown by non-ionic crystals and density of solid decreases जो interstitial defect है that is shown by non-ionic solids and it increases the density of the solid. जो Frankel defect है that is shown by ionic solids और density इसमें same रहती है and Schottky defect that is shown by ionic solids and decreases the density of the solid. So this gives us A as the correct option. So the question is match the following जिसमें आपके पास कॉलम 1 में है 3 डिफेक्ट्स impurity defect, metal excess defect और metal deficiency defect. अब कॉलम 2 में है 3 options KCl with vacant anionic site, nickel oxide with Na3 positive and AgCl with CdCl2. अब impurity defect अकर करता है जब आप किसी यूनिपॉजिटिव क्रिस्टल में डाई पॉजिटिव जैसे सीडियम कैडमियम हो गया आपके पास 2 पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है तो जब आप CdCl2 ऐड करेंगे AgCl में तो impurity defect होगा. मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या है कि आपके पास मेटल आयंस ज्यादा होंगी और ये तब अकर होगा जब आपके पास KCl में अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होंगी वो डिफ्यूज होके Cl नेगेटिव आयन डिफ्यूज होके सरफेस पे चला जाता है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा जब आपके पास एक आयन जो है वो रेशियो में नहीं है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट है तो इससे जो आपका आंसर बनता है दैट इज A. Then comes the reason for graphite being a good conductor is the presence of so graphite is a good conductor क्योंकि उसके पास present है free valence electrons right then is 45th क्वेश्चन जिसमें है आपके पास आयनिक सॉलिड नेटवर्क सॉलिड मेटालिक सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड अब आपको इनको मैच करना है सो आयनिक सॉलिड वो होते हैं जिनके पास
फ्री आयंस सॉलिड स्टेट में नहीं होती हैं, राइट। नेटवर्क सॉलिड वो होते हैं जिसके पास आपके पास इसमें जायंट मॉलिक्यूल्स के साथ ये मैच करेगा, जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेयर्स होती है जैसे ग्रेफाइट की, और डायमंड टेट्राहेड्रास होते हैं उनके लिंक्ड। मेटालिक सॉलिड विल मैच विद पॉजिटिव आयंस इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इसका मॉडल प्रपोज्ड है, और हाइड्रोजन बॉन्डेड जो हैं वो सॉफ्ट सॉलिड्स बनाते हैं। देन इज this figure which shows the structure of unit cell and each corner is shared between, they are asking कितने corners जो हैं, कितने side ये atom जो है वो shared है। तो आप देख सकते हो 3D में ये shape दी हुई है जिसमें एक atom के 8 parts होते हैं और it is shared between 8 unit cells, so C is the correct answer. Then is which kind of defect is shown by the given crystal? अब देखो यहाँ से मिसिंग है K पॉजिटिव, यहाँ से भी मिसिंग है K पॉजिटिव, यहाँ से मिसिंग है Cl नेगेटिव, यहाँ से भी मिसिंग है Cl नेगेटिव। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन मिसिंग होती हैं शॉर्ट की डिफेक्ट में, then C is the answer. अब ये दो डिफेक्ट आपको दिए हुए हैं जिसमें आपके पास पहले डिफेक्ट में NaCl की क्रिस्टल है, स्ट्रोंशियम को आपने ऐड किया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब भी यूनिपॉजिटिव आयन वाली क्रिस्टल में बाय पॉजिटिव इम्प्योरिटी ऐड करोगे तो ये बन जाएगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट, राइट। सो दिस वन इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एंड जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐसे एनायनिक वैकेंसी पे ऑक्यूपाई कर लेता है उसको, तो उसको बोलते हैं F सेंटर, और इस डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सो आपका A इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला वाला फिगर है इम्प्योरिटी डिफेक्ट का, दूसरा है F सेंटर। Among the Bravais lattice, which type of crystals contain more than one type of Bravais lattice? तो more than one type होते हैं मोनोक्लिनिक में, ठीक है। दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न, टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, गो थ्रू दैट। देन इज आपको ये बताना है ये वॉइड ए किस तरह का वॉइड है। तो देखो ये एज की सेंटर है और एज सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होता है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इस पार्ट में आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी कोई क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टॉपिक से रिलेटेड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी क्वेरीज हो, आपको जो भी पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं।